Hello, students. A very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next session of acids, bases, and the salts. So, in the last session, already we discussed what are the properties of bases and what are the uses of bases. Already we discussed in the last session. So, now in this session, we will discuss about the salts neutralization reaction. What are the properties of a salt and what are the uses of a salt and neutralization reaction in our daily life. तो आज के सेशन में हमें यही डिस्कशन कर लेना है. फर्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ अ साल्ट. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ साल्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अ साल्ट and neutralization reaction in our daily life. So let's start today's session. The first one concept in this session is a salts neutralization reaction. When an acid is added to base, the salt and water is formed and heat is also evolved. This is called as the neutralization reaction between an acid and base. जब कोई एसिड हम बेस में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है बोलो तो साल्ट एंड वाटर हमें क्या है फॉर्म हो जाता है. उसके साथ क्या बोलो तो हीट क्या है इवॉल्व हो जाती है. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इन सच a reaction an acid neutralizes the effect of bases and bases neutralizes effects of acid. तो इन रिएक्शन में एसिड क्या है न्यूट्रलाइज होते हैं किसकी वजह से द इफेक्ट ऑफ बेसिस, और बेसिस न्यूट्रलाइज होते हैं किसकी वजह से द इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स. Salt can be defined as a compound derived from the neutralization of an acid and base. Salt may be acidic, basic, or neutral in the nature. Now see, salt can be defined as a compound. Salt is obtained from the neutralization reaction between the acid and the bases. Salt may be acidic, basic, or neutral in the nature. तो साल्ट का जो डेफिनेशन रहेगा वो क्या होता है आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस वो क्या है फॉर्म हो जाता है. साल्ट नेचर में क्या तो या तो एसिडिक रहेगा या तो बेसिक रहेगा या तो न्यूट्रल रहेगा. फॉर एग्जांपल, व्हेन एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. नाउ सी, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज added to sodium hydroxide, they neutralize to each other. As a result, sodium chloride salt and the water are formed with the evolution of heat. तो इसके साथ हमें क्या मिलेगा बोलो तो साल्ट और वाटर, और इसके साथ हमें क्या है हीट भी क्या है इवॉल्व हो जाती है. अंडरस्टैंड? दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ साल्ट. मालूम सभी को ध्यान में रखिए, जब भी कोई एसिड हम किसी बेस के साथ उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद they neutralizes to each other and to form the salt and water with the heat. जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट होता है, रिएक्ट होने के बाद इससे क्या मिलता है तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है, उसी के साथ हीट भी क्या है इवॉल्व हो जाती है. इस प्रकार के रिएक्शन में साल्ट जो न्यूट्रलाइज होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बेसिस, और जो बेस न्यूट्रलाइज होता है वो किसकी वजह से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एसिड. बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर न्यूट्रलाइज टू ईच अदर. दोनों का क्या होता है बोलो तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है. इसकी वजह से क्या बोलते हो साल्ट और वाटर क्या है फॉर्म हो जाता है. अगर साल्ट को हमें डिफाइन करना है, साल्ट इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड इज obtained from the after the neutralization reaction between the salt and the acid and the base. Take one simple example. When hydrochloric acid is added in a sodium hydroxide, जब भी हम किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो एज ए रिजल्ट वी ऑब्टेन salt and the water with the evolution of heat. So this is the salt neutralization reaction. Understand? तो राइट डाउन, इसके बारे में लिख सकते हैं. When an acid when an acid is added
is added to a base, a salt and water, a salt and water are formed. Heat is also evolved. It is also evolved. The reaction between between an acid and a base is called neutralization reaction. Is called neutralization reaction. When an acid is added to a base, a salt and water are formed. Heat is also evolved. The reaction between an acid and base is called the neutralization reaction. Now see, general equation of a neutralization reaction is a acid plus base. This is a general equation of a neutralization reaction. Salt plus water plus heat. Now see, in such a reaction, an acid neutralizes the effect of base. And base neutralizes the effect of an acid. Effect of an acid. Listen. So I have one simple example. Hydrochloric acid, HCl, plus sodium hydroxide. Anyways, sodium hydroxide, write down. Anyways, it gives sodium chloride plus water plus heat. This is the neutralization reaction of a salt. Understand? The next one, concept it. What are the properties of a salt? Next one, what are the properties of salts? Properties of, now see, now so the next one concept is what are the properties of a salt? Most salts are solids with a high melting and the boiling points. Now see, most salts are solids with a high melting point and the boiling point. बहुत सारे salts क्या बोलते सॉलिड रहते हैं विथ उनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या बोलते ज्यादा रहता है. मोस्ट salts are soluble in water. बहुत सारे salts क्या बोलते पानी में क्या इजीली क्या वो डिसॉल्व होते हैं. Salt solutions in water are good conductor of electricity. जो साल्ट का सोल्यूशन रहता है इन वाटर में वो उसमें क्या होता है इजीली इलेक्ट्रिक करंट्स क्या है ट्रांसफर होता है. तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स. मोस्ट साल्ट्स आर सॉलिड्स विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट. जो मैक्सिमम साल्ट रहते हैं वो क्या है सॉलिड फॉर्म में रहते हैं. उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है ज्यादा रहता है. मोस्ट साल्ट्स आर डिसॉल्व इन वाटर. बहुत सारे साल्ट्स क्या होते हैं पानी में क्या है इजीली क्या है डिसॉल्व होते हैं. साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो साल्ट का सॉल्यूशन रहता है पानी में बना है सो
इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है इजीली क्या है ट्रांसफर होता है. दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स. तो लिखिए most salts are solids with the high melting and the boiling points. First one property. Most salts are solids with high melting and boiling points. Number 2, most salts are soluble in water. Salt solutions in water are good conductors of electricity. Salt solutions in water are good conductors of electricity. Most salts are soluble in water. Most salts are solids with the high melting and the boiling points. So these are the properties of salts. Next one concept C. What are the uses of a salt? There are different kinds of salts like common salt, baking soda, potassium nitrate, potash alum, and the silver nitrate. Now see, so what are the uses of such kind of salts? तो इस साल्ट से क्या क्या यूजेस रहेंगे इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. Uses of salts. Uses of salts. Now see, common salt. So we know that common salt is an important ingredient of food. हमारे फूड का जो important ingredients क्या हो तो salt है. It is a good preservative in a pickles etc. तो अपने जो pickles रहते हैं उसको preservation करने के लिए क्या हो तो common salt को क्या है यूज किया जाता है. Understand? So common salt is used in the important ingredients of our food. नमक के बिना हमारा जितना भी जो खाना रहता है उसको क्या बोलते टेस्ट नहीं रहता है. इट इज अ गुड प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स. जो अलग अलग प्रकार के जो पिकल्स रहते हैं आम का अचार हो नींबू का अचार हो उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या बोलते आयोडीन साल्ट्स को क्या है यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन सी बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन द बेकिंग ब्रेड्स एंड द केक्स इन मेडिसिन एंड आल्सो इन द फायर एक्सटिंग्विशर. हमारा जो बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट ये किस में यूज किया जाता है तो फॉर बेकिंग ब्रेड्स अपने जो ब्रेड्स रहते हैं उसको बेकिंग करने के लिए केक्स में उसको यूज किया जाता है. मेडिसिन में उसको यूज किया जाता है. अनेस क्या बोलते इन फायर एक्सटिंग्विशर में उसको क्या है यूज किया जाता है. नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर एंड द फायर वर्क्स. जो अपना पोटेशियम नाइट्रेट है उसको क्या किस में यूज किया जाता है तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर एंड द फायर वर्क्स. नाउ सी फिटकारी पोटेश अलम इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. पोटेशियम जो अपना अलम रहता है पोटेशियम इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर द डेवलपिंग फिल्म्स इन द फोटोग्राफी. ध्यान में रखिए तो सिल्वर नाइट्रेट कहाँ पर बोलो तो जो फिल्म में जो फोटोग्राफी रहती है उसको क्या है डेवलपमेंट करने के लिए उसको क्या है यूज किए जाते हैं. कॉमन साल्ट, बेकिंग सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेश अलम एंड सिल्वर नाइट्रेट आर यूज्ड इन द डिफरेंट पर्पसेस. ये जो साल्ट है अलग अलग इसके लिए उसको क्या है यूज किया जाता है. तो अपना कॉमन साल्ट है फूड में यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन बेकिंग सोडा है फॉर बेकिंग द ब्रेड्स एंड द केक्स मेडिसिन एंड द फायर एक्सटिंग्विशर. नेक्स्ट वन नाइट्रेट जो अपना रहेगा वो क्या बोलते हो मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर. पोटेशियम यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड फॉर द डेवलपिंग ऑफ फोटोग्राफी इन द फिल्म इंडस्ट्री. So these are the uses of salt.
देखिए what are the uses of a salt. First one is a common salt. Common salt is usually an important ingredient of food. It is a good preservative. It is a good preservative in pickles. Baking soda. Baking soda is usually in baking breads, and cakes. In medicines, and also in fire extinguisher. Next, number third is nitrate, potassium nitrate. Is used in the manufacture of gunpowder, fireworks, etc. Now see fitkari या potash alum. Number 4. Potash alum is used for purification of water. Last one is silver nitrate. Is used for developing films in photography. So these are the uses of salts. Now see the next one, neutralizing reaction in every daily life. अब हमारे डेली लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. नाउ सी फर्स्ट वन इज इंडाइजेशन और एसिडिटी. जो हमारी एसिडिटी होती है किसकी वजह से ध्यान में रखिए. The walls of our stomach secrete hydrochloric acid. So we know that the walls of our stomach secrete the hydrochloric acids in our stomach. This acid helps to digest the food. जो एसिड हमारे स्टमक के वॉल से जो प्रोड्यूस होता है उसका जो क्या रोल है बोलो तो फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन. हमारे पेट में अगर एसिड प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ आवर स्टमक so it produce the indigestion. तो इसकी वजह से हमें क्या होता है इंडाइजेशन होता है. Indigestion is sometimes painful too. When anybody suffers from indigestion, it is advised to take antacids such as the milk of magnesia. अगर कोई एसिड सफर कर रहा है तो उनको क्या बोलते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटीएसिड लेना क्या है बहुत जरूरी है.
नेक्स्ट नाउ सी एंड स्टिंग और बी स्टिंग। द स्टिंग ऑफ एन एंट और बी कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। जो हमारे अंट रहते हैं वो काटने के बाद उनके इसमें क्या रहता है, वो तो फॉर्मिक एसिड रहता है। व्हेन एन एंट और बी बाइट्स फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड इनटू द बॉडी व्हिच कॉजेस इचिंग। जब भी वो हमारी बॉडी में ये करते तो बहुत क्या तकलीफ होती है, इचिंग होती है। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और क्लेम सॉल्यूशन। उसको हमें जिस एरिया के ऊपर आपने एंट को बेकिंग किए सो है, बाइट किए सो है, उसको हमें इमीडिएटली क्या करना है, बेकिंग सोडा से उसके ऊपर हमें क्या करना है, रब कर लेना है। नेक्स्ट नाउ सी सॉइल ट्रीटमेंट। In the fields, fertilizers are used to improve the crop field. Nowadays, farmers are using the different kinds of the fertilizer for the large production of different kinds of the crops. Due to the excessive use of fertilizer, the soil becomes too acidic or too basic. Now, ज़्यादा जब फर्टिलाइजर अपने खेतों में यूज करते हैं, इसके कारण हमारी जो खेती होती है वो एसिडिक और क्या है, बेसिक हो जाती है। Plants do not grow well in such a soil. If the soil is too acidic, it is treated with a bases like क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम। अगर हमारी सॉइल अगर ज्यादा अगर एसिडिक होते हैं तो हमें क्या होता है, अपनी खेती में चूना डालना बहुत जरूरी है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम को क्या हमें यूज करना है। लास्ट नाउ सी फैक्ट्री वेस्ट। The industry's waste, that is the wastage from the factories, contain acid. If they are allowed to flow into the waste as it is, they cause damage and may even kill the aquatic plants and the animals. Now see, the number of factories produce the different kinds of the harmful substances, and such kind of the harmful substances mixed with the water. These are very harmful for the aquatic animals and the surrounding atmosphere. तो बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री रहते हैं वो बहुत क्या है, बोलो तो हार्मफुल सब्सटेंस को क्या प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद वही आकर खराब अगर किसी पानी में जाता है तो जो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म उनके लिए हार्मफुल है और एटमॉस्फेयर के लिए भी क्या है, बहुत ही हानिकारक है। Understand? The last one concept is what are the difference between the acids and the base? It's very simple. Now see, acids have a sour taste, bases have a bitter taste. एसिड का सोर कैसा रहेगा, टेस्ट कैसा रहेगा, उसका सोर रहेगा, और बेस का कैसा रहेगा, बिटर रहेगा। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड and change the color to red litmus blue. Change the color of a China rose indicator to magenta. Change the color of a China indicator to green. Now, acid and base changing their colors. Do not change the color of a turmeric paper. Acid क्या होता है, टर्मरिक पेपर के ऊपर अपना कलर चेंज नहीं करते हैं। Change the color of a turmeric paper to reddish the brown. Their solution do not give any soapy feeling. एसिड का जो सोल्यूशन रहता है वो सूपी नहीं रहता है, बेस का सोल्यूशन क्या रहता है तो सूपी रहता है। ऑल द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितनी भी एसिड्स है वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, और सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ ही बेसिस क्या होते तो पानी में क्या है, डिसॉल्व होते हैं। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड द बेसिस। ओके, टुडे स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। इस तरह से यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी सॉल्व द एक्सरसाइज। ओके, टुडे स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। Stay safe, stay indoors from Municipal Public School, Aura, Shachi.